اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے ایک اور موقع دیا اس علی شان مجلس میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے دین کی بات کرنے کے لیے. ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خود چنتا ہے. بولتے جو یہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے بندے آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ خود چنتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی اللہ خود چنتا جو اس کی دین کی بات، اس کے حضور کی بات بتانے والا رہتا. تو اللہ تعالیٰ کا اپن شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لمبی چنچوڑے گاؤں کے سینکڑوں مسلمان مردوں میں سے جو ہے اپنے کو چنیا ہے نا، کہ یہ دین کی بات سننے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین کی بات بولنے کے لیے. تو خدا کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ خدا نے جو ہے مجھے بہترین طریقے سے 6 صفاتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے جو ہے بتایا. اس میں سے جو ہے اپن سب سے پہلے جو ہے ایمان کے بارے میں بات کریں، ہے نا. ایمان کیا ہے، مسلمان کی خوبیاں کیا رہنی چاہیے، ان کے بارے میں اپن بات کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اپن بات کریں پاکیزگی کے بارے میں، ہے نا. اسلام کے اندر جو ہے ایمان اور نماز کے بیچ میں، ایمان اور نماز کو جو جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پاکیزگی کرتی ہے نا. ایمان کو باقی کے جتنے بھی ثواب کے کام ہیں، وہ چاہے نماز رہنے دو، قرآن شریف پڑھنے کا رہنے دو، حج کو جانے کا رہنے دو، ہر چیز کو جو ہے کیا جوڑتے ہیں؟ پاکیزگی جو ہے سیمنٹ کی طرح کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ابھی تمہیں ایک گھر بن رہے، اس کے طرف پتھر بھی لیسے، اینٹا بھی لیسے، سب لے. اگر سیمنٹ نہیں لیتے تمہیں کیسا کرنے والے؟ ایک کے اوپر ایک اٹنگڑا رچت چلتا ہے کیا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ زمین ہے. زمین مطلب کیا؟ ایمان ہے. ہاں. پھر اس کے بعد باقی کی جو عبادتیں ہیں، باقی کی عبادتیں مطلب کیا؟ نماز، قرآن شریف پڑھنا بولو، یا پھر حج کو جانا بولو. ہاں. باقی کی جتنے بھی تسبیح پڑھنا، بیان دینا، دین کی دعوت دینا، سب ہے. وہ سب کیا ہے؟ اینٹنگڑے اور پتھر ہے. کیا؟ اینٹ اور پتھر ہے. تمہارے پاس زمین ہے یعنی ایمان ہے. پھر اس کے بعد تمہارے پاس پتھر ہیں، اینٹنگڑے ہیں، مطلب باقی کی سب عبادتیں. لیکن تمہارے پاس پاکیزگی نہیں ہے، مطلب سیمنٹ نہیں ہے، تو تمہیں بن سکیں گے کیا؟ تمہارے پاس گارا نہیں ہے وہ اینٹوں کے بیچ میں ڈالنے کے لیے. اینٹ اور پتھر کو زمین پر رکھو، ایک کے اندر ایک چپکانے کا استر گارا نہیں ہے تمہارے پاس، تو تمہاری بلڈنگ ٹھہریں گی کیا؟ تمہارا ایمان ٹھہرے گا کیا؟ تمہاری عبادتیں کتنی بھی مضبوط رہنے دو، لیکن تمہاری اٹنگڑے پتھرے کتنے بھاری رہنے دو، سب سے بھاری کوالٹی کے رہنے دو، اگر تمہیں سیمنٹ ٹچ نہیں ڈالے، ذرا بھی ہوا ہوئی تو پڑتے. ایک بچہ بھی ذرا دھکا دیا تو دیوار کیا کرتی؟ نیچے گرتی ہے نا. تو جس طریقے سے کسی بھی باندھکام کو بننے کے واسطے سیمنٹ لگتے ہے، گارا لگتے ہے، ویسا جو ہے ایک مسلمان کو مومن بنانے کے واسطے، ایک مسلمان کو جنتی بنانے کے واسطے پاکیزگی مہتو ہے. بنا پاکیزگی کے تمہاری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہیں کتنے بھی عبادت کرو، ہے نا، کتنے بھی عبادت کرو، تمہیں بنا پاکیزگی کے تمہاری عبادتوں کو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو عبادت کرنے کے واسطے پاکیزگی بہت زیادہ مہتو کی ہے، جیسا کسی بھی باندھکام کو بننے کے واسطے گارے کی ضرورت ہے. تو اپن عبادت کے بارے میں یہ اپن کیا بات کریں؟ پاکیزگی کے بارے میں بھی بات کریں. وضو کیسا کرنے کا، غسل کیسا کرنے کا، ان کے فرض، ان کے سنت، سب کے بارے میں بات کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وضو کیسا ٹوٹتی، غسل کیسا ٹوٹتا، تیمم کیسا کرنے کا، یہ سب کے بارے میں بات کریں. اور ابھی جو ہے اپن بات کرنے والے مسلمان کی زندگی کی سب سے مہتوپورن چیز جسے باقی کے لوگوں سے الگ کرتے. اپن مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فقط داڑھی ٹوپی رکھنے والے کو بولتی، کیا نماز پڑھنے والے کو مسلمان بولتی؟ مسلمان نماز پڑھتا رہے گا تو جو کیا ہے؟ مسلمان. ایمان کے اندر نماز کا مہتو اتنا بڑا ہے کہ جتنا مہتو انسان کے شریر میں سر کا ہے. سمجھے کیا؟ ایک آدمی ہے بنا سر کا رہا تو نہیں زندہ رہ سکتا کیا؟ رہ سکتا کیا؟ نہیں رہ سکتا. تو ویسا جو ہے ایک مسلمان بنا نماز کے مسلمان کہلایا نہیں جا سکتا. انہیں بھلے ہی کتنا بڑا حاجی رن دے، زندگی میں 100 بار حج کو جا پاندے، لیکن اگر انہیں نماز نہیں پڑھتا رہے گا تو اس کے حج کیا ہوئے؟ کسی کام کی نہیں. یہ بہت بڑا حافظ ہے، روز ایک قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، کیا روز ایک قرآن شریف پڑھ رہا،
लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, फिर उसकी वो हाफिजी की उसके उस कुरान शरीफ पढ़ने को कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है। क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबियों से कि ये सहाबियों, सबसे पहले क़यामत के दिन खुदावंद जो है, दोनों जहां के सरकार, दोनों जहां का बादशाह जो अपना खुदा है, वो सबसे पहले नमाज का हिसाब लेगा। क्या लेगा? वो सबसे पहले तुम्हारी नमाजों का हिसाब लेगा, फिर उसके बाद जो है तुम्हारी बाकी की इबादतों को देखा जाएगा। अल्लाह ये नहीं देखेंगे कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बार हज किया, अल्लाह ये नहीं देखेंगे कि तुमने कितने बार जो है तस्बीह पढ़ी, अल्लाह ताला ये नहीं देखेंगे कि तुमने कितने बार कुरान शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला ये नहीं देखेंगे कि तुम्हें जिंदगी में कितनी बार रोजे रखे। अल्लाह ताला सबसे पहला क्या देखेंगे? तू नमाज कितना पढ़ा बोल मुझे, तू नमाज कितने पढ़े थे तेरी जिंदगी में? मैंने तुझे 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी। क्या? मैंने एक मुसलमान के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के लिए मैंने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। तूने 5 वक्त की नमाज पढ़ी क्या? मुझे इतना बोल बस। तो अपन अल्लाह ताला को क्या जवाब दे सकेंगे? दे सकेंगे क्या अपन अल्लाह ताला को जवाब? नहीं दे सकते अपन, क्योंकि अपन पढ़े नहीं। तो सबसे पहले नमाज का हिसाब होने वाला है, सबसे पहले नमाज का हिसाब होने वाला है। अभी तुम्हें पेपर देने गई, एग्जाम हॉल में पेपर देने गई तुम्हें, तुम्हारे पास वो पेपर का ये नहीं है, चिट्ठी नहीं है तुम्हारे कने वो पेपर में बैठने की। क्या? पेपर में बैठने की चिट्ठी नहीं है तो पेपर बैठने देगा क्यों नहीं आदमी? तुम्हें भले बोलो मैं ये कॉलेज का हूँ, मैं वो ये कॉलेज का हूँ, मैं भरपूर पढ़ाई कर को ऐसे है, हाँ मैं 3 साल ये करे सो है, वो करे सो है, लेकिन उन्हें क्या करता है? नहीं सुनता। उन्हें क्या कहता है? पहला वो कागज दिखा मुझे। क्या कहता है उन्हें? पहला वो पेपर का कागज दिखा, तब बस मैं तुझे बैठने देता। तू कितनी भी पढ़ाई करे सरेंदे, तू पंतप्रधान का के बैठा रहता कि नहीं? पहला वो पेपर का कागज दिखा, तब बस बैठने देता मैं तुझे। तो इस्लाम में भी नमाज जो है वो पेपर का कागज है, वो जो जन्नत में ले जाने का असर काम करने वाला है। कि पहला वो कागज दिखो, पहला नमाज दिखो तुम्हारी, तब बस तुम्हें जन्नत में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे तुम्हें। वैसा तो छोड़ो, जन्नत जो है नमाजों से भी नहीं मिलने वाली है खुदा के फजल से। खुदा ने फरमाया है जन्नत जो है हम तुम्हें जो है, हम तुम्हें जब जन्नत मिलेगी वो हमारे करम से मिलेगी, हमारे क्या बोलते हैं, हमारी अगर मर्जी रहेगी तब बस तुम्हें जन्नत मिलेगी, भले तुम कितनी भी इबादत करो। लेकिन फिर भी जो है खुदा क्या करने वाली? नमाज का सबसे पहला हिसाब लेने वाली। हदीस पाक में ये तक कहा जाता कि वो इंसान जिसकी नमाज सही हुई ना, उसकी पूरी इबादत सही हुई बोलते हैं। क्या? उसके नमाजा सही निकले ना, खत्म। उसे बाद में पूछने वाले नहीं बोलते अल्लाह ताला क्या भी तेरे नमाजा सही है ना, चल तू बाजू को सरक, तू जन्नती हुआ, ऐसा करेंगे बोलते अल्लाह ताला वैसा कयामत के दिन। तो सबसे पहला नमाज अल्लाह ताला क्या बोले? सबसे पहले नमाजों को सही करो, सबसे पहले नमाजों को पढ़ो। तुम्हें 5 वक्त का हमने क्या दिया है? नमाजों का जो है तोहफा दिया है, तो 5 वक्त की नमाजों को पढ़ो। नमाजों को पढ़ के जो है मेरे सामने आओ, मैं जब तुमसे हिसाब पूछूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और तुमने भी हिसाब देते वक्त अच्छा लगेगा। अभी माँ बाप तुमने पैसे दे सकते, कुछ हिसाब लेते टाइम को एक एग्जांपल दे रहा मैं, माँ बाप एक पैसे दे बाजार में ये सामान ला वो सामान ला सब ला बोले, तुमने हिसाब च मालूम नहीं सामान का, तो कैसा चलेगा? क्या बोलने वाले तुम्हें? अम्मी किसी इसी इतना किलो गया, इसी वक्त पैसे गए, नहीं बोल सकते तुम्हें। तो यहाँ छपुन हिसाब नहीं दे सकते दुनिया में छपुन बाजार को जाको, बाजार से वापस आने के बाद अपने माँ बाप को अपन हिसाब नहीं दे सकते सादा कि बाबा कौन सा माल कितने को लिए, क्या तेल का पैकेट कितने को लिया, फल्ला कितने रुपए किलो लिए, ये बोल नहीं सकते अपन। तो वो खुदा के सामने अपन कैसा हिसाब देंगे अपने नमाजों का? वो बोलो तुम्हें, खुदा के सामने नमाजों का हिसाब कैसा देंगे बोलो? नहीं दे सकते अपन। अरे उन्हें हिसाब लेने पर आया ना, उन्हें सांस तुम्हें कितना ऑक्सीजन ले वो तक पूछ सकता हूं, कितने बूंद पानी पिए वो भी पूछ सकता हूं। उसे कौन सवाल करने वाला है बोलो? अल्लाह को। तू पूछने के कहीं कर को आगे के सर को जरा तक दूर दूर बैठी समझ ले, आगे सरक जरा, आ इधर आगे सामने, ऐसा ये पोकड़ी नहीं रखना रे, जगह खाली नहीं रहना, आगे आगे सर को मिलजुल को बैठो। हाँ
जहाँ जगह खाली रहती है वहाँ को शैतान बैठता बोलते हैं लोगों को बहकाने हैं, और जुम्मा के दिन तो नींद लगाता उन्हें लोगों को, और आगे बैठो जरा सर को। तो अपन जो ही मुसलमान की जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है नमाज, उसके बारे में आज से अपन बात करने वाले। तो खुदा दुनिया में जितने भी अमल भेजा, दुनिया में जितने भी काम करो कर को बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के काम करने के लिए बोला, तो वो हर एक काम जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में भेज दिया अल्लाह ताला कि बाबा जिब्राइल अलैहि ये कहीं का बाबा ये जिक्र का हुक्म है, ये लीजा को मेरे हुजूर को दे दे। हाँ जिब्राइल ये कुरान शरीफ की आयतें ही बाबा ये लीजा को मेरे हुजूर को दे दे। जिब्राइल ये हज का हुक्म है, मेरे हुजूर को जो है हज का तरीका और हज का हुक्म बता को। जिब्राइल हाँ ये जो है ये गुस्ल करने का तरीका है मेरे हुजूर को बता, ये वजू करने का तरीका है मेरे हुजूर को बता, ये पाकीज़गी का तरीका है मेरे हुजूर को बता, ये ईमान का तोहफा है ये मेरे हुजूर को जाको देखा। ईमान का तोहफा तक अल्लाह ताला किसके हाथ में भेजा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में भेजा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे को तक अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ से उतारा जमीन पर। लेकिन जब नमाज देने का वक्त आया, क्या जब मोमिनों को नमाज का तोहफा देने के बारे में अल्लाह ताला ने सोचा, तो अल्लाह ताला जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नहीं बुलाया, अल्लाह ताला ने किसे बुलाया? खुद हुजूर पाक सरकार दो आलम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। किसे बुलाया? दोनों जहां के सरताज, दोनों जहां के बादशाह, नबियों के सरदार, नबियों के इमाम, जिनके सदके तोहफे में अल्लाह ताला ने सातों जमीन सातों आसमान को बनाया, जन्नत जहन्नुम को बनाया, 18,000 मखलूकातों को बनाया, उनको जो है अल्लाह ताला ने फर्श से अर्श को बुलाया। क्या बुलाया? फर्श से अर्श को बुलाया। उसके बारे में बहुत लंबा किस्सा है, वो किस्से के बारे में बात करेंगे। अगर नमाज के बारे में बात करते रहेंगे, वो नमाज का तोहफा कैसा मिला, इसका किस्सा अगर तुमने याद नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा, है ना। तो वक्त का तकाजा है बोल के उसे मैं पूरा नहीं करूंगा, उसे आगे जुम्मा से अपन चालू करेंगे कि नमाज का तोहफा खुदा ने किस तरीके से अपने हुजूर के हाथ में दिया। वो जो शबे मेराज का जो पूरा सफर था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किसका सफर? शबे मेराज का सफर, जो अपन बड़ी रात बोल के जागते मस्जिदों में आकर, अपने घरों में अपनी माँ बहनें जागते, तो वो रात का जो सफर था उसके बारे में अपन अगली जुम्मा से बात करेंगे। तो जब नमाज का तोहफा देने की बात आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हदीसों में ये तक बात आती है कि सातों जमीन सातों आसमान का वजन, जन्नत जहन्नुम का वजन एक पल्ले में रखा जाए, और एक तरफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी हुई चिट्ठी रखी जाए, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमे का पल्ला भारी होगा बोलते। तो इतने मजबूत कलमे को, इतने अजीम कलमे को तक अल्लाह ताला किसके हाथ में भेजा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में भेजा। लेकिन जब नमाज का तोहफा देने का वक्त आया, तो खुदा ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्श से अर्श पर बुलाया। तो इस पर से तुम्हें सोच सकते हैं कि नमाज का महत्व कितना ज्यादा है एक मुसलमान की जिंदगी में, है कि नहीं? कि अल्लाह ताला जो है खुद अपने महबूब को फर्श से अर्श पर बुला रहे नमाज का तोहफा देने के लिए। आज अपन जो है इस नमाज के तोहफे को संभाल रहे नहीं। अरे जब वो नमाज का तोहफा लेकर हुजूर पाक सरकार दो आलम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श से फर्श पर आए, तो सभी सहाबी जो है खुशी से झूमने लगे बोलते, खुशियां मनाने लगे बोलते। तो काफिर उनको देखकर हंसने लगे, अरे क्या ये लोग हैं यार, ईद नहीं क्या नहीं, किसकी शादी नहीं, कार्यक्रम नहीं, कहीं क्यों नाच रहे बाबा ये लोग, इतना कहीं खुशी मना रहे। तो सहाबी बोलते अरे हमने हमारे अल्लाह के साथ कम्युनिकेट करने का, बात करने का हमने मौका मिला, हमने हमारे खुदा के साथ बात करने का एक तरीका मिले सर। अब हमें कभी भी जब चाहे तब हमारे खुदा के साथ बात कर सकते, जब चाहे तब हमारे खुदा के साथ बात कर कर हमारे मसलों को सॉल्व कर सकते, हमारे मसलों को दूर कर सकते। और वो सहाबियों ने करके दिखाया भी, सहाबियों ने करके दिखाया भी। 2-2 रकात नमाज पढ़कर उन्होंने जो है अपने मरे हुए बच्चों को जिंदा किया, 2-2 रकात नमाज पढ़कर उन्होंने अपने मरे हुए खच्चरों को जिंदा किया, 2-2 रकात नमाज पढ़ के अपनी सूखी हुई खेतियों में जो है बारिश बरसाया, क्योंकि उनका ईमान उतना पक्का था, नमाज के ऊपर उनका यकीन उतना पक्का था कि या अल्लाह, मेरे अल्लाह के ऊपर मुझे यकीन है, कुछ भी होने दे, मैं अगर नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह मेरे
कामा को खत्म करेगा, मेरे कामा मेरी परेशानी जो भी है वो खत्म करेगा, मेरी हर एक परेशानी को दूर कर कर मेरे सभी कामों को पूरा करेगा, ये उनको यकीन था। आज वो यकीन अपने दिल में नहीं है, आज वो यकीन दुनिया के मुसलमानों के दिलों में नहीं है अभी। अगर यकीन होता तो आज जो है इतनी परेशानियां मुसलमानों को झेलनी नहीं पड़ती। आज अगर यकीन होता तो 15 दिन में धूप काला, थंड काला और बारिश काला तीनों एक साथ अपन नहीं देखे असते। आज ही 15 दिन पहले से जो है ये चालू है, खुदा के फजल से ये खुदा का आजाब है। इस पर से अपन समझना कि ठंडी के दिन भी चालू है, उसमें धूप भी लग रही है 30-40 डिग्री की, और उसमें जो है बारिश भी गिरने की। क्या ये कयामत के असरात हैं कि क्या ये? बोलो तुम्हें कभी हुए क्या? या इतने सारे बुजुर्ग बैठे नहीं, तुम्हें कभी देखें क्या ऐसा गिरते? सो धूप भी है, बारिश भी है, ठंडी भी है, नहीं देखे कौन भी। तो ये जो है अपने अमलों के सबब हो रहा है। आज जो दुनिया भर में जो तकलीफें आ रहे, दुनिया भर में जो जलजले आ रहे, ये सब जो है हम मुसलमानों की वजह से आ रहे, क्योंकि हम मुसलमान जो है नमाजों को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, नमाजों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे। हम जो है नमाजों का महत्व भूले ले, हम जो है नमाजों का महत्व भूले से। पहले जमाने में भी नमाज इतनी ज्यादा नहीं पढ़ते थे लोग, लेकिन उनके दिल में डर था। किसका डर था? खुदा का डर था। डरते थे वो लोग, बाबा मैं क्या तो गलत कराया तो खुदा पकड़ेगा बाबा मुझे। आप उनको नमाज मालूम नहीं था, कलमा मालूम नहीं था, कुरान शरीफ मालूम नहीं था, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उतनी मालूमात थी उनको। आज पूरी दुनिया खुली हुई है, दुनिया में आज कहां पर भी कुछ भी होते अपने को मालूम पड़ता है, 1 सेकंड के अंदर मालूम पड़ता। लेकिन अपने पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, नमाज के बारे में जानने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, हीरो हीरोइन की जिंदगी में क्या चल रहा, हाँ नरेंद्र मोदी कहाँ फिरने जाने वाला, ये सब अपने को मालूम रहता। हाँ, किसी कितने बच्चे हुए, कौन कितने विकेट लिया, कौन कितने रन काटे, ये सब अपने को मालूम रहता। ये सब अपन जानने की कोशिश करते, लेकिन अपन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। हाँ, नमाज की सुन्नतें क्या है, नमाज के फर्ज क्या है, नमाज का तरीका क्या है, किस तरीके से कुरान शरीफ पढ़ा जाए, हाँ किस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाए। अरे यहाँ पर इतने लोगों में कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है। ऐसे गांव देहात अभी भी मौजूद है जिनको कलमा तक मालूम नहीं है, वहां के मुसलमानों को। ये किसकी वजह से हो रहा? अपने वजह से हो रहा, क्योंकि अपन जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि अपन ने को जो है पूरी दुनिया भर की बातें सुनने के लिए टाइम है, पूरे दुनिया भर की बातें सीखने के लिए टाइम है, लेकिन दीन के बारे में सीखने के लिए, दीन की बात सुनने के लिए वक्त नहीं है अपने पास। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दीन के लिए थोड़ा वक्त निकालो, बस दीन के लिए सिर्फ थोड़ा वक्त निकालो। दुनिया भर के कामों के लिए अपन अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी डालते, अरे दीन के वास्ते 24 घंटे का दिन रहता अपना, 24 घंटे के अंदर से 1 घंटा 2 घंटे तो दो इस्लाम के वास्ते, ईमान के वास्ते, अपने दीन के वास्ते, जिसमें से आधा घंटा भी नहीं जाता 5 वक्त की नमाज मिले तो। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए एक आधा घंटा दो, दिन में 2-3 रुकू तो पढ़ो, कम से कम 1 रुकू तो पढ़ो कुरान शरीफ का। हाँ, और बचे तो 1 घंटा जो है सूर्य सीखने के लिए, नमाज का तरीका सीखने के लिए, वजू का तरीका सीखने के लिए, गुस्ल का तरीका सीखने के लिए डालो। थोड़ा बहुत वक्त दीन के वास्ते भी दो, दीन के अरकान क्या है, हाँ दीन में फर्ज क्या है, सुन्नत क्या है, नफिल क्या है, इसके बारे में सीखो। मैं अल्लाह ताला से सिर्फ यही इल्तिजा कर सकता, मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों तक माहिती पहुंचाना है, बाकी हिदायत देना नहीं देना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो मैं अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है यहाँ पर मौजूद हर एक मुसलमान को जो है, और उसके साथ साथ आगे भविष्य में इस बयान को जो भी सुनेगा उस हर मुसलमान को जो है अल्लाह ताला जो है भरपूर हिदायत दे कि वो दीन के सभी फर्जों को, सुन्नतों को, नफिलों को सीखने की कोशिश करे, कुरान शरीफ को सीखने की कोशिश करे, नमाजों को सीखने की कोशिश करे, नमाज का तरीका सीखने की कोशिश करे, हाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ने की जो है अल्लाह ताला हिदायत दे, कुरान शरीफ पढ़ने की हिदायत दे। बस मेरी अल्लाह ताला से आज के इस बयान के जरिए यही दुआ है। तो इंशाअल्लाह अपन जो है अगले बयान से जो है नमाज के बारे में बात करेंगे। नमाज का पूरा जो किस्सा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र था, शब मेराज का सफ़र, फर्श से अर्श तक का, उस सफ़र के बारे में अपन इंशाअल्लाह अगले जुमा से बात करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो।